ਇਹ 12 ਦੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਹਨ ਇਹ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 12 ਦੇ 12 ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਤੂ ਭਾਵ ਆਈ ਪੰਥੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗਜੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 12 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹੇਤੂ ਭਾਵ ਆਈ, ਗੰਮਿਆ, ਪਾਗਲ, ਗੋਪਾਲ, ਕੰਥੜੀ, ਬੰਨ, ਤਵੱਜ, ਝੋਲੀ, ਰਾਵਲ ਤੇ ਦਾਸ। ਇਹ 12 ਪੰਥ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ 12 ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਹ 12 ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੇਤੂ ਭਾਵ ਆਈ, ਗੰਮਿਆ, ਪਾਗਲ, ਗੋਪਾਲ, ਕੰਥੜੀ, ਬੰਨ, ਤਵੱਜ, ਝੋਲੀ, ਰਾਵਲ ਅਤੇ ਦਾਸ। ਇਹ 12 ਪੰਥ ਨੇ, 12 ਫਿਰਕੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੂਰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਚੂਰਮੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਚੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਪਕਵਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਚੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਿਓ, ਮੈਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਇਤ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚੂਰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚੂਰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਫਿਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਤ ਗਿਆਨ, ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਹ ਰੀਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਰੋਹ ਰੀਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰੋਟੀ ਪਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੂਰਮਾ ਵਰਤਾਣਾ ਹੈ, ਚੂਰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਲੋਕ, ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੂਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਹਨ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੂਰਮਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ
घट घट वाजै नाद, चूरमा ते भंडारा। साहब कहते हैं कि इनू फिर वरतान वाली हर रोज़ इनू वरतान वाली फिर वरताउंदे हन सारिਆਂ ਨੂੰ एक एक जने पहला बुलाया जाता है नाद मार के, पहला चूरमा तैयार कराया जाता है, फिर नाद बजाया जाता है। नाद की आवाज़ सुन के फिर जोगी लोग इकत्र होंदे हन। इकत्र होने तो बाद जिहड़ा भंडारा उन्होंने बनाया होंदा है उस दिन फिर वो भंडारा वरताया जाता है। भुगत ज्ञान दया भंडारण, भंडारण मतलब वरताउण वाली, जिहड़ा चूरमा बनया होया है उसनूं वरताउण वाली। हुण साहब सतगुरु जी किदां दा लोच देंदे ने, किदां समझाते हैं उन्होंने कि भलिओ जिहड़ा चूरमा तुसीं बनाते हो इस चूरमे दे नाल खाली पेट भरदा है। जिहड़ा चूरमा तुसीं बनाया है इस चूरमे नाल खाली पेट भरदा है, कोई अकल नहीं आउणी, कोई ज्ञान नहीं आउणा। पर जिहड़ा चूरमा मैं बनाने लई कह रहा ना वो बना के वेखो, ज्ञान आवेगा, सोझी आवेगी, उन्होंने खाण तो बाद जीवन तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। साहब सतगुरु जी कह रहे जिहड़ा चूरमा तुसीं बना के वरताउंदे हो खाली पेट भरदा है, अकल नहीं आउंदी, ज्ञान नहीं आउंदा। हुण चूरमा तैयार करन दे लई मंगना भी तो उन्हां घरां 'च ही पिया ना, जिहड़े लोक गृहस्थी सन, क्योंकि मिठा मैदा इत आदक ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां चूरमे लई वरतियां गईयां वो गृहस्थियां दे घरां तो आईयां जी। ये तो नहीं भी जोगियां ने कोई अपनी मिल लाई हुई सी, उतों खंड तैयार की, उतों आटा तैयार किया, उतों सतनाजा तैयार करके तो फिर चूरमा नहीं, लोगों के घरां 'चों मंग के लैके आए। जिहड़े लोगों नाल इन्नी नफरत सी भी लोग भी घर काट तज के गृह तज बन खंड जाइए, अपने घरां नूं तज के बना च जंगलों च लुक जाना चाहिए, जिहड़ी मनौत बनाई सी जोगियां ने। फिर उन्हां दे घरां च ही मंगना पिया, आटा इत आदि सब कुछ उन्हां दे घरां च ही लैके आए मंग के। ते साहब कहंदे भलिओ जिहड़ा ये चूरमा बनाया है ये सिर्फ पेट की पूर्ति लई है, इन्हें ज्ञान कोई नहीं देना। साहब का समझाने का तरीका है, क्योंकि लोग जिथे इकत्र होए उन्होंने गुरु घर च दो चीज़ां बराबर चलदियां ने, दो चीज़ां ते दोवें लंगर रूप च ने। गुरु घर के अंदर दोवें चीज़ां बराबर चलदियां ने, दोवें चीज़ां लंगर रूप च ने। क्योंकि लंगर चला गुर शब्द हर टोट ना आवी खट्टी है। ये बाबे नानक की हट्टी है, जिथे शब्द का लंगर चलता है उत्थे भी टोट तंगी नहीं आती। दूसरा इस बाउंडरी तो इस ज्ञान के मुजस्मे तो जो बाहर निकलते हैं तो फिर गुरु का लंगर चलता होंगे। दोवें चीज़ां बराबर ने ना। एक शब्द रूपी लंगर है जिहड़ा मन की तृप्ति करता है, ते एक दूसरा लंगर है जिहड़ा तन की तृप्ति करता है, प्रशादा। दोवें लंगर बराबर चलते हैं गुरु घर के अंदर। जिन्हें भी हिस्टोरीकल गुरु घर ने, लोकल नहीं, हिस्टोरीकल जिन्हें भी गुरु घर ने उन्हां विच जाओगे तो दोवें चीज़ां बराबर मिलणगियां। लंगर चला गुर शब्द हर टोट ना आवी खट्टी है। शब्द का लंगर भी निता प्रति 24 घंटे उत्थे चलदा होवेगा, ते प्रशादे वाला लंगर जिहड़ा है पेट की पूर्ति वाला वो भी 24 घंटे निरंतर चलदा होवेगा। इस सदका गुरु घर के अंदर दोवें चीज़ां बराबर ने। पर हुण इत्थे कोई ज्ञान नहीं दे रहा, इत्थे सिर्फ लंगर छकण दे लई लोग आए, चूरमा खाण दे लई लोग आए। क्योंकि ज्ञान की तो इत्थे गल कीती नहीं, क्योंकि गुरु नानक साहब ने ज्ञान की गल कीती है। इत्थे जोगी उस दिन पंडाल ला के कोई
गुरमता नहीं करते। उस दिन सारे फिरके इकट्ठे होके, मैं एक बार फिर आप जी के ज्ञात की जिक्र करा भी 12 फिरके हेतु पाप आई गम्या गोपाल पागल कंथड़ी बन तवज रावल दास चोली, ये 12 के 12 फिरके उस दिन इकत्र होंगे ने। इकत्र होके ये जिहड़ा भंडारा इनू छकण दे लई आउंदे ने, कोई ज्ञान की गल करन लई नहीं आउंदे। ते साहब गुरु नानक देव महाराज जी का समझाउण दा तरीका बाकमाल है। साहब गुरु नानक देव महाराज जी कहंदे भलिओ जिहड़े भंडारे नूं छकण दे लई आए हो उहदे तो पहलां कोई गुरमता करो, कोई ज्ञान की गल करो, क्योंकि गुरु घर च दोवें चीज़ां मैं पहलां जिक्र करता भी बराबर चलदियां ने। शब्द गुरु का लंगर जिहड़ा वो भी ते दूसरा लंगर, पर इत्थे कल्ले लंगर की गल सी तां गुरु नानक साहब ने ज्ञान की गल की। क्योंकि जिथे भीड़ होवे, याद रखियो, जिथे भीड़ होवे गुरु नानक साहब उस जगह ते गुरमत की गल करते हैं भी सारिਆਂ नूं समझ आवे। तुहाडा एडा वड्डा जग करन दा की फायदा जे तुसी कोई ज्ञान की गल ही नहीं करनी। इन्ने बंदे इकत्र करन दा की फायदा जे ज्ञान की गल नहीं होनी। मैनूं माफ़ करना, भीड़ां भी उत्थे हुंदियां ने जिथे लच्चर गायकी होवे, नचन वाले होण, जिथे गंद परोस के थाली च दिता जाता होवे, वो खाण दे लई हरेक बंदा तैयार रहिंदा है। भीड़ां जुड़ जांदियां ने, किसी गायक नूं आया होवे, कोई नचन वाली आई होवे, भीड़ां जुड़दियां ने। पर जिथे ज्ञान की गल होवे उत्थे भीड़ नहीं इकत्र होंदी, उत्थे भीड़ नहीं जुड़ती, उत्थे गिणवे चुनवे ही बंदे होंदे, क्योंकि उत्थे ज्ञान की गल हो रही है। अज्ञानता की गल जिथे हो रही है उत्थे भीड़ां जुड़दियां ने, मेले लगदे ने। पर जिथे ज्ञान की गल हुंदी उत्थे चंद बंदे होंदे। साहब सतगुरु जी का तरीका बहुत वधिया बाकमाल है, क्योंकि जदों वैष्णव पंडित मगर लगदा तो भीड़ इकत्र हो जाती। साहब पहला नहीं बोलते, अगे अगे मरदाना, पिछे पिछे वैष्णव पंडित चो लैके भजदा है। जदों हरिद्वार की धरती ते बहुत ज़्यादा लोग भीड़ दे विच इकत्र हो जाते हैं, ये तमाशा वेखण लई, ये तमाशा वेखण लई भी एक पंडित किसी मनुख दे मगर चो लैके लगा, तमाशा वेखण लई लोग इकत्र होंदे। मेरा बाबा नानक उस टाइम बोलता है, सब उदों बोलते हैं जदों सारे लोग इकत्र होए होंदे ने। सब गुरु नानक देव महाराज उदों की बोलते हैं, कबुद्ध डोमनी को दया कुसाइन पर निंदा कट चूड़ी, मुट्ठी क्रोध चंडाल कारी कड्डी, क्या थिया जे चारे बैठियां ना। हुण समझाया तो वैष्णव पंडित नूं, बंदा तो इको ही सी जिहड़ा भाई मरदाने दे मगर लगा सी, पर जिन्ने लोग उत्थे इकत्र होए उन्हां सारिਆਂ नूं भी समझ आ गई भी पंडित का करैक्टर की है। पंडित किस किरदार नूं निभाउण लई संसार की धरती ते आया है ते किस किरदार नूं निभा रहा है, सारे लोगों नूं समझ आ गई ना जी। बंदा इको ही सी जिन्हों गल समझानी सी, कबुद्ध डोमनी कदया कुसाइन पर निंदा घट चूड़ी, पर जिन्ने लोग इकत्र होए उन्होंने भी गल समझ आ गई। साहब किते नहीं भी हाँ साडे ते ही हुंदा ना जी, जे कोई गल करनी है ना भी अलग जगह ते आ जाओ, उत्थे कर लिओ। ज्ञान की गल करन लई भी अलग जाके करो गल, किसी कमरे च ज्ञान दे दो, स्टेज ते नहीं। एवें दी गल नहीं बोलनी चाहिए, इदां दीयां गल्लां नहीं करनियां चाहिए। आपां आम करके कह दिंदे, पर हद हो गई भी ज्ञान की गल भी कमरियां च बंद कमरियां च करांगे, फिर लोगों को समझ की बाबे नानक का सिद्धांत किधर गया, फिर की समझ आवेगी लोगों को। इस सदका साहब सतगुरु जी जदों बोलते हैं ओपनली बोलते हैं,
सारी लोकां दे विच बोलदे ने, भीड़ च बोलदे कन, युरत रखदे ने, पावर रखदे ने गुरु नानक साहब बोलन दी। कलयुगी पंडित दे कोल जांदे ने, पंडे कोल जांदे ने, पता है इन्हां दे लोग जे मेरे गल पै गए एक एक कसून भी मारनगे ते मार देणगे सन। ते जे इदां डरदे गुरु नानक साहब ते कलयुगी पंडे दा पाज ना उगड़दा। कहण तो मुराद हुण उन्हां दे गढ़ च जाके उन्हां दे 12 फिरकियां दी गल करनी किहड़ी पावर होवेगी गुरु नानक साहब दे अंदर, किहड़ी युरत होवेगी गुरु नानक साहब दे अंदर। कोई योधा कोई सूरबीर ही गल कर सकता है। इस सदका सतगुरां ने योधे सूरबीर जंगे मैदान च लड़न वालियां नूं नहीं कहा। शब्द वैसे भावें आपां जदों भी किते पढ़दे हां उन्हां जंग दे मैदान दे विच जिहड़े जेतू होए उन्हां लई पढ़े जांदे ने शब्द, पर इत्थे खेड़ कुछ होर है। जां को हर रंग लागो इस युग में, जिन्हां नूं घड़ी दा रंग लग गया ते संसार दी धरती च रहिंदिया सो कहियत है सूरा। वो सूरमा जी की कहोगे? बाबा कबीर साहब ने कोई जंग नहीं लड़ी। बाबा कबीर साहब होरां ने जंग दे मैदान च कोई जंग नहीं लड़ी, पर उन्हां टाइम दे जिहड़े अफरे हंकारे होए आफरे होए पंडित सन उन्हां दे नाल जबानी जंग ते लड़ी है ना। की कहोगे? भगत कबीर साहब सूरमे ने, भगत कबीर साहब सूरमे ने। भगत रविदास जिन्हां नूं लोग चमार चमार कहंदे वो मुकरदे नहीं इस गल तो। वो आप कहंदे चमरट्टा गांठ ना गंढकी लोग गठावे पनखी। कहंदे मैनू मता कोई पंडित ये कह दे भी लिखिया होया जी साखियां दे विच। जदों प्रोफैसर साहब सिंह होरां दा टीका पढ़ांगे ना उन्हां बकायदा जिक्र कीता है। जदों आपां भगत बाणी दीआं पोथियां पढ़दे हैं ना उन्हां च जिक्र कीता भी पंडित लोग कहंदे ने भी इहदा जन्म पहिलां पंडितां दे घर सी रविदास दा। इहनूं श्राप मिलिया क्योंकि चमार दे घर दा भोजन लैके आ गया। इहनूं श्राप मिलिया भी तेरा जन्म चमार दे घर होवेगा। है पंडितां दा ही मुंडा है पर इहदा जन्म चमारां दे घर होया। इदां नहीं हो सकदा। उस साखी नूं कंडैम कीता प्रोफैसर साहब सिंह। वो कहंदे भी इदां नहीं हो सकदा क्योंकि ये लोग जिहड़ा कोई ज्ञानवान जमदा है, क्योंकि इन्हां नूं यही सी भी वो साडे घर च ही पैदा हुंदा है, पंडितां दे घर च ही पैदा हुंदा है। शूदर दे घर ज्ञान नहीं हो सकदा। शूदर दे घर कोई ज्ञानवान बंदा पैदा नहीं हो सकता। तां करके साखियां बना दित्तियां गईयां कड़ कड़ के भी भगत रविदास दा जन्म पहला पंडितां दे घरां दा सी। तां वो विद्वान सी, तां उन्हें शब्द उच्चारण कीते, तां उन्हें ये शब्द कहे। पर नहीं भले हो साहबा ने शूदर दे घर भी ज्ञान पैदा किया है। साहबा ने शूदर दे घर भी ज्ञान पैदा किया है। साहबा ने पंडित दे घर भी मूर्ख पैदा किया। हुण ये मालिक की मर्जी है ना, खर पंडित को मूर्ख कर पो, मूर्ख ते मुदगारी। उहदी रजा है भी पंडित दे घर भी एक मूर्ख पैदा हो सकता है। उहदी रजा है कि मूर्ख दे घर भी एक पंडित विद्वान पैदा हो सकता है। उहदी रजा है। इस सदका साहब गुरु नानक देव महाराज इत्थे हुण जंग लड़न तो जंग लड़न दे बराबर की गल कर रहे हैं गुरु नानक साहब। क्योंकि मैं जिक्र कर चुकिया, बार बार नहीं दोहराउणा चाहुंदा कि 12 फिरके इकत्तर होए होण। 12 फिरके जोगियां दे इकत्तर होए होण। 12 फिरके हेतु पाव आई गम्य गोपाल पागल कंथड़ी तवाज बन झोरी रावलदास 12 दे 12 फिरके इकत्तर होए होण। सारे फिरकियां दे किन्ने किन्ने लोग होणगे। एक पंथ सब तो उत्तम श्रेष्ठ है जिन्होंने आई पंथी कहते हैं। बाकी के जोड़े 11 फिरके ने उन्हां दे विच भी तो हैगे ने ना। हुण सारे इकत्तर होए ने इक्को दिन जिदने भंडारा वरतांदे ने सारे इकत्तर गन
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਭਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰਮਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਕੰਦਰਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਾਥ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਧਨੰਤਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਚੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।